Okay, we will start the lecture. Shall we start the lecture? Yes, sir. Okay. So rate analysis already we have due to some problem due to power off. It has been we will start this rate analysis. Already we have discussed the amount it has been taken, quantity of materials required, cost of labors required, and the miscellaneous. These three it has been added to find out the total cost of any item of work. Okay. So it will be varying depending upon the transportation cost from place to place. The material cost may be varying. The labor cost may also vary. So due to transportation of labors or due to transportation of materials, it may vary from side to side. Okay. So therefore, the cost of any item of work may vary due to transportation cost. Okay. Again, what is the purpose of rate analysis? Why we have to study rate analysis? To know, to work out the actual cost of per unit of item. That is, we have to find out the actual cost of per unit in the sense per meter cube of PCC, or per meter cube of earthwork in excavations, or per square meters of DPC, or per meter cube of brickworks, or per square meters of plastering works. So per unit we have to find out the different items of work. Okay. So this plays an important role. This rate analysis, it is used to find out the quantity per unit quantity. Okay. So this plays an important role in finding out the cost of per unit of the item of work. Again, to work out the economical use of materials and processes in completing the particular items. Okay. So in economical way, how much materials are required, what should be the process in completions. Okay. So in we have to find out in economical way, because the main purpose is to find out the cost of any item of work, or the cost of various item of work in within the permissible limit. Okay. So we have to complete the project within the permissible limit. So this rate analysis, prior to the execution of any work, this rate analysis gives an idea for the how much amount is required. Okay. So therefore we can judge whether whether this construction work, it has been economical, or it is beyond our limits. Okay. So this to work out the economical use of materials and processing in completing the particular items. Okay. So we have to have economical use also, economical cost of the construction work also. Okay. Again, third purpose of the rate analysis is nothing but to work out the cost of extra items which are not provided in the contract bond, but are to be done as per the directions of the client. Okay. In some cases, while we are having a contract basis, while we are hiring a tenders, or while we are filling a tenders, or in contract, while we are doing a work in contract basis, some extra amount of work it is to be carried out. So how much how we have to pay that particular rate according what the amount to be paid of this extra item. Okay. So this extra item amount to be calculated depending upon the rate analysis. Okay. So rate analysis gives an idea how much extra work it has been carried out beyond the contract. ठीक है. एक तो रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ गिवन है, वो वी आर एग्जीक्यूटिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, but some extra work it has been carried out beyond the contract. So how much amount to be paid to the contractor, how much amount to be paid to the laborers. So this can be calculated with the help of the rate analysis for the extra. Okay, extra amount, extra item of work. Again, fourth important purpose of rate analysis is nothing but to revise the schedule of rates due to increase in the cost of materials and labors, or due to change in techniques. Okay. So again, there is in some cases we have to revise the rates. Okay. Due to some changes in the rates of the materials, there may be changes in the labors also. So every time we have to revise the schedule of rates. Okay. So this rate analysis plays an important role in revising the rates, in revising the schedule of rates, in revising the cost of materials required, in revising the amount of materials required depending upon the different techniques. Okay. Due to change in the techniques, due to change in design also, due to change in detailings also. So there may be different changes. So we have to, depending upon that changes, we have to have some change in the total cost. Okay. So this total cost changes can be find out by the rate analysis. Again, what are the different data required for the rate analysis? What are the different data required for the rate analysis?
What are the details of all operational operations involved in carrying out the works? So first we, we have to find out the different operations. Starting from different operations, what are the different operations it has been carried out? So these operations, it has been first we have to find out we have to have an idea about the different operations involved in the carrying out of work. So, suppose there is a PCC, so starting from first stage up to the last stage, what are the different operations it has been carried out? Okay. So after having an idea regarding the operations, we can find out the rate analysis of any item of works. Again, the quantity of materials and then cost, already I have already said that first we have to find out the quantity of materials and also the its cost. Okay, the number of different categories of labors required. First class labors is there, second class labors are there. The different categories labors also we have to find out. Okay, the numbers of different categories of labors required, their working capacity and daily wages. What should be their working capacity? Suppose there is in per day 8 hours is there, so how much output or the task work it has been carried out by the one laborers or one masons. Okay, in 8 hours, how much is the output given by that labor? How much is the output given by that that is skilled labor or unskilled labor or mason, or the different suppose there is a carpenter or bar binder, so what is the output given by that bar binder or carpenter or mason or laborers in 8 hours? Okay, so this calculations is also to be capacity of that labor or capacity of that mason to do the work in in per day. We have to find out, and we should have an idea regarding this. Okay, the numbers of different categories of labors required, their working capacity and their daily wages. What should be the wages, daily wages of that workers? Again, rates of items depends on specifications. Again, this specifications already we have discussed or in previous unit. Specifications, that is nothing but the specific description of particular item of work. So rate of items depends upon its specifications. Specifications is nothing but what should be the I have given the example of PCC 1:2:4. So one part of cement, two parts of sand, fine aggregates, and four parts of coarse aggregate. So these all quantities, it has been first we have to find out or first we have to have an idea regarding the specifications. Okay, the specifications of work and materials, their quantities, proportions, and method of construction, constructional operations. Method is nothing but whether we will have hand mixing, whether we will have a concrete mixing, whether we will have some special advanced equipments required for construction of this. So all these methods of constructions, it has been taken care. Again, location of site of work. Again, cost of labors and their wages. Again, this it has been repeated. What should be the cost of labors and their wages per day? What are the wages given to the mason? What are the wages given to the laborers or skilled or unskilled laborers or carpenters or barbenders? So what should be the wages given to this different categories of labors? Okay. So location of site of work, again there is whether this site is nearby or it is outskirts. So depending upon it, again the cost will be depending upon this overhead and establishment charges. Again, overhead and establishment charges is again the it depends upon overhead charges and establishment charges. Again, profit and miscellaneous, there should be some profit given to the engineers also. Contractors profit is also there, engineers profit is also there. So it is near about 10% of the total cost. Okay, so 10% of total cost, it has been taken as the engineers profit or the contractors profit. Okay, so profit and miscellaneous expenses of the contractor, all these things, it has been taken care while finding out the cost of any item of work. While finding out the cost of any item of work, these things, it is to be with us. Okay, we should have the specifications, we should have the materials required, the cost of labors required. We should know what should be whether we are having these labors, whether we are hiring the labors or the equipment from nearby, or what should be the transportation cost, or what should be the overhead and establishment charges, and profit and miscellaneous expenses of the contractor. All these heads are important while finding out the rates of any item of work. Okay. Again, analysis of rates. The analysis of rates is worked out for the unit payment of the particular item of work. For unit payment, suppose we are giving a payment for one item of work. Suppose we are suppose my in my construction site, I am hiring a contractor for only for plastering work. Okay, I am hiring a contractor for only for plastering work.
so we have to pay the amount of only of that particular item of work, that is plastering. ठीक है, so this is nothing but one unit of item of work. ठीक है, so this analysis of rates is worked out for the unit payment of the particular item of work under two heads. ठीक है, so already I have already said the how much is the material required and how much is the labors required. What should be the fine aggregates required? Plastering is the best example. So how much fine aggregate required for the plastering work, and what should be the amount of cement required? These are the materials required. Again, for executing this work, how much quantity of labors are required? So this material and labors, these it has been clubbed together to find out the analysis of rates. Okay. Again, material cost plus labor cost is nothing but the cost of item of work. This two it has been added to find out the total cost of any item of work. Again, other items includes beyond this material cost or beyond this labor cost, what are the different items of work it has been included. So this miscellaneous, in miscellaneous works, first we have to take first serial number is nothing but the tools and plants. Okay, so again we have to have separate amount which has been kept aside for tools and plants. So tools and plants, some extra equipments, advanced equipments is required. So near about 2.5 to 3% of the labor's cost it has been kept aside for the tools and plants. So how much cost it has been kept aside for tools and plants? That is nothing but 2.5 to 3% of the labor cost. This labor cost, okay, because we are reducing the efforts of labors. Okay, by using the advanced equipments, we are reducing the amount of labors. So this it has been taken from the labor's cost. Okay, because we are the amount of labor, suppose we are having the amount of labor required in particular site is 10 numbers. Okay, but by using these tools and plants we can reduce the amount of labors as 7 or 7 numbers also, 5 numbers also. So this total cost it has been taken from kept aside from the labors, because we are reducing the intensity of labors. Okay, so therefore it has been taken from labors. So 2.5 to 3% from the labors. Again, transportation cost more than 8 kilometers is considered. If we are hiring the tools and plants, or if we are hiring the materials from transportation away from the 8 kilometers, then extra cost will be required. So this is in rare case. This transportation cost more than 8 kilometers is considered. It is in the rare case. Next is nothing but the water charges. Again, I have already said, if the water is not available in sites, so we have to hire tankers. So we have to pay the amount to the tankers. Separate amount is required for the, because water plays an important role in construction site. Because without water we cannot execute, or we cannot construct, or we cannot have any construction work. So water charges, out of the total cost 1.5 to 2% it has been kept aside for the water charges. Okay, so this is, it has been taken from the total cost, whereas tools and plants it has been taken from the labor cost, whereas this 1.5 to 2% water charges it has been taken from the total cost. Again, after overall cost, all these calculations, contractor's profit it has been taken as 10% of the total cost. Again, this contractor's profit it has been taken as 10% of the total cost, total overall cost. So these are the heads. Beyond this material and labor, these heads all are also considered while finding out the amount, or while finding out the rate of any item of work. ठीक है, एक तो material लेना है, labors लेना है. Beyond this labors and materials, we have to have tools and plants also, we have to have water charges also, we have to have contractors profit also. So these three heads are beyond this material and labors. That means total 5 heads are there. Material, labors are the two important heads. Beyond this, these are the miscellaneous heads. ठीक है, tools and plants, वाटर चार्जेस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट. तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, यस Yes, sir. ओके. So next is the cost of materials. So again, cost of materials, the cost of materials are taken as delivered at site of work. So depending upon the it is inclusive of the cost at origin, from where we are taking this from quarries. If we are taking the coarse aggregate from quarries from different mines, so what should be the transportation cost? So all this it has been included in the cost of materials. कितना पैसा लगेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन में लाने के लिए, फ्रॉम क्वेरीज, फ्रॉम वेरियस, फ्रॉम वियर इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है कोर्स एग्रीगेट या फिर फाइन एग्रीगेट. तो ऑल दिस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑल दिस कॉस्ट इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इफ एनी, local taxes, other charges, all this it has been included in the cost of materials. मतलब आपने जो अमाउंट लिखे हैं वहाँ पे,
per meter cube, that is cost of fine aggregate per meter cube or the cost of coarse aggregate per meter cube. तो it will be included all with all this, ठीक है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा था या फिर उसको जो लेबर्स अनलोडिंग अनलोडिंग में लगे थे या फिर ऑल द चार्जेस इट हैज़ बीन कवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये सारे चीज़ कवर करके अपने सामने जो आएगा वो पर मीटर क्यूब कॉस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट आएगा, पर मीटर क्यूब कॉस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट आएगा, या फिर पर बैग सीमेंट का रेट होगा, या फिर डिफरेंट स्टील का है, अगर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हायर कर रहे हैं, अगर समझो वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे गुजरात में और भी जगह पे जो इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील है, अगर वहाँ से वी आर हायरिंग द स्टील, तो ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी कवर्ड इन दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अगेन लीड स्टेटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट इज लीड? लीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटीज ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ से अवेलेबल है और जहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है, जहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज लीड। दिस लीड इज नथिंग बट द टेक्निकल वर्ड। ये लीड जो वर्ड है वो एक टेक्निकल वर्ड है जो यूज़ किया जाता है जिसमें द वाइल मेजरिंग द डिस्टेंस, ठीक है। तो जहाँ से अपन हायर कर रहे हैं, जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं और जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन साइट। अगर क्वेरीज से वेरियस माइन से अगर आप कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं तो वहाँ से लेके मेरे साइट तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज द लीड स्टेटमेंट एंड इज एक्सपेक्टेड इन किलोमीटर्स। तो नॉर्मली वो तो किलोमीटर्स में ही रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन लीड। तो कितना लीड है, 8 किलोमीटर से बियॉन्ड है या फिर अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो लीड का जो डिस्टेंस रहेगा, जो डिस्टेंस कवर होगा वो कॉस्ट में कवर, मतलब वी हैव टू ऐड दिस ट्रैवलिंग कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिकॉज 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर से कम है तो वो निग्लिजिबल है, मतलब दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर 8 किलोमीटर से बाहर से अगर आप कोई मटेरियल हायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड दिस कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में। दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस मोर देन 8 किलोमीटर्स। अगर 8 किलोमीटर से बियॉन्ड रहेगा तो दैट चार्जेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अगेन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लेबर्स, बिकॉज ये दो हेड इंपॉर्टेंट थे, तो ये दो हेड है, लेबर्स का कॉस्ट और मटेरियल का कॉस्ट। तो मटेरियल का कॉस्ट में हो गया है लेबर्स कॉस्ट, ठीक है। The labors can be classified into following, that is the skilled labor, that is first class skilled labors and second class unskilled labors, ठीक है। दो क्लास रहते हैं लेबर्स के नॉर्मली, skilled and unskilled, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, skilled and unskilled। तो कितने क्वांटिटीज ऑफ स्किल लेबर्स एक साइड पे रहना चाहिए या फिर अनस्किल्ड लेबर्स रहना चाहिए? तो 30% ऑफ स्किल लेबर्स प्रोवाइडेड इन द डाटा में बी टेकन एज फर्स्ट क्लास एंड रिमेनिंग 70% एज टेकन एज सेकंड क्लास। मतलब ऐसा एक नॉर्मली अगर देखेंगे इन लास्ट स्ट्रक्चर्स तो स्किल्ड लेबर्स अनस्किल्ड लेबर्स डिवाइड होते हैं। ऐसा अपने पास तो नॉर्मली एक ही कैटेगरी रहती है, दैट इज़ द स्किल्ड लेबर्स, ठीक है। एक ही स्किल्ड और अनस्किल्ड रहता है, कोई साइड्स में अनस्किल्ड रहता है तो अनस्किल्ड ही रहेगा, कोई साइड्स में स्किल्ड रहता है स्किल्ड ही रहेगा। तो नॉर्मली ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं रहता है, बट टेक्निकली देर इज़ बाइफर्केशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। तो एक साइड में कितने स्किल्ड लेबर्स रहना चाहिए? 30%, और 70% जो रहेगा अनस्किल्ड लेबर्स रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट कितना रहेगा? तो नियर अबाउट 6 to 10%। तो नॉर्मली वी विल टेक एज 10% एज द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस इज द 6 to 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट इज अलाउड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। 10% प्रॉफिट इज नॉट अलाउड इन सीमेंट एंड स्टील, ठीक है। तो सीमेंट स्टील में 10% नहीं रहेगा, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के लिए 6 to 10% रहेगा, ठीक है। मिसलेनियस में जैसा बताया था, जैसा टूल्स एंड प्लांट्स रहेगा, या फिर मिसलेनियस में और भी सम miscellaneous charges will also be included. तो lump sum provisions are made for the miscellaneous items. So when we will calculate the return analysis, so we will have an idea how much miscellaneous amount it is to be taken care, मतलब which things to be covered in the miscellaneous में कौन से things cover होंगे, we will see in while we will solve the problem. Again, overhead cost is nothing but the overhead cost comes to be about 6 to 8% of the project cost, and it includes the indirect expenses incurred during the execution of project. Overhead मतलब beyond labors, beyond materials, overhead charges कितना रहेगा उसमें? तो we will take as 6 to 8%.
6 to 8% ऑफ द टोटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो रहेगा 6 to 8% दैट विल बी टेकन एज द ओवरहेड कॉस्ट। तो जनरल ओवरहेड में क्या रहेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओवरहेड इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या रहेगा, एक तो ऑफिस का स्टाफ इस्टेब्लिशमेंट रहेगा, सम ऑफिस विल बी रिक्वायर्ड, सम ऑफिस स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड, सम वहाँ पे पीसी एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्री वर्क इट इज़ टू बी कैरिड आउट इन दैट ऑफिस। तो कुछ एस्टिमेशन पार्ट भी रहेगा, डिजाइनिंग पार्ट भी होगा, तो ऑफिस रहेगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस रहेगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग पोस्टेज चार्जेस रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन के लिए चार्जेस, रेंट एंड टैक्सेस, अगर वो वहाँ पे कोई मतलब वेदर वी आर हायरिंग दैट रूम ऑन रेंट रहेगा, टैक्सेस रहेगा, तो वो सारी चीज़ें कवर रहेगा। अगर कोई टैक्सेस पे करना है आपको, कोई टेलीफोनिक बिल्स है या फिर इलेक्ट्रिकल बिल्स है या फिर वाटर टैक्स है, तो डिफरेंट अगर टैक्सेस पे करना है तो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। तो दिस near about 5 items it has been covered in the overhead charges. Again, job overheads is nothing but supervisions, salaries of engineers, supervisors, etc. Job overhead में क्या रहेगा, handling of materials के लिए separate laborers will be required, repair carriages, depreciation and of tools and plants. तो ये depreciation we will see in the valuations. ये depreciation is nothing but the decrease in the cost of any equipment. Depreciation word it is related with the decay of equipments, tools and plants, ठीक है। तो रिपेयर, कैरियज और डिप्रिसिएशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, ये भी एक सेपरेट अमाउंट लगेगा। इसमें लेबर्स के लिए एम्यूनिटीज़, लेबर कैंप्स लगेंगे, डिफरेंट एम्यूनिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर लेबर्स रहेगा। तो ऑल दिस लेबर के लिए लेबर्स शेड्स लगेंगे, तो लेबर एम्यूनिटीज़, ठीक है। वर्कर्स कंपनसेशंस, इंश्योरेंस भी रहेगा वर्कर्स का, उसके लिए भी कुछ अमाउंट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। लॉसेज ऑन एडवांटेजेस, ठीक है। तो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द जॉब ओवरहेड्स। तो ये सारे थिंग्स कवर होना है, और दैट इज़ टू फाइंड आउट द रिटन एनालिसिस। अगर आपको डिटेल में रिटन एनालिसिस निकालना है तो ऑल दिस थिंग्स इट हैज़ टू बी कवर्ड, ठीक है। नॉर्मली अपन जो रिटन एनालिसिस निकालते हैं तो ये मतलब ये एक रफ आइडिया लेते हैं कि हाउ मच थिंग्स इट हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स इट हैज़ बीन कवर्ड इन द वाइल फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क। अगेन टास्क और आउटटर्न ऑफ वर्क, ठीक है। व्हाट इज टास्क और आउटटर्न? तो आउटटर्न मतलब इन वन डे what is the output given by a labor, what is the output given by a mason, what is the output given by a carpenter, what is the output given by a bar vendor, or what is the output given by a painter, or what is the output given by a tile layer, टाइल जो लगाने वाला जो रहता है उसको बोलता है टाइल लेयर। तो व्हाट इज दिस आउटपुट गिवन, आउटपुट, ठीक है। तो दिस टेक्निकल वर्ड इट हैज़ बीन टेकन एज द आउटटर्न वर्क और टास्क वर्क। मतलब एक आदमी एक दिन में क्या काम करेगा, हाउ मच इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन आर्टिसियन और स्किल्ड लेबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नोन एज टास्क वर्क और आउटटर्न ऑफ द लेबर्स। ये फिक्स रहता है, मतलब एक दिन में एक मेसन ने इतना काम करना ही करना है विदाउट एनी मतलब डिले। वन लेबर और वन मेसन और वन कारपेंटर शुड डू दिस अमाउंट ऑफ वर्क इन पर डे। अगर इतना काम करता है दैट मीन्स वी आर दैट कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी इन इकोनॉमिकल स्टेज। अगर एक दिन में उतना काम नहीं होता है दैट मीन्स कैसा होगा कि फिर डेज ज़्यादा होते जाएंगे, अमाउंट ज़्यादा स्पेंड होते जाएगा और फिर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रहेगा वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि मेसन एक दिन में कितना काम करेगा, लेबर एक दिन में कितना काम करेगा, या फिर जो भी कारपेंटर है, जो भी बार बाइंडर है, या फिर फिटर है, जो भी है एक दिन में कितना काम करेगा। तो आई एम हैविंग अ चार्ट अबाउट दिस। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स, आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स और आउटटर्न्स ऑफ डिफरेंट लेबर्स, ये वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। The outturn of work per artisan is the word, technical word is nothing but given to this skilled or artisan word, it is the technical word given to this labor category. The work per artisan varies with the situations and locations, so it depends upon the situation कि whether that labor or that man that person it has been doing the work, मतलब tedious work कर रहा है या फिर easy work कर रहा है या फिर scaffolding के ऊपर work हो रहा है या फिर below plinth level work हो रहा है। तो वो वर्क का सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ वर्क एंड लोकेशन कितने दूर है। अभी कोई काम हो रहा है कि इट वी हैव टू मटेरियल दूर से लेके आना है, सीमेंट दूर से लाना है,
और फिर लेबर्स को भी थोड़ा सा टीडियस जॉब है, तो दैट मीन्स उसका आउट टर्न जो रहेगा, आउट टर्न ऑफ लेबर विल बी लेस, ठीक है, आउट टर्न ऑफ दैट लेबर विल बी लेस बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट within the permissible limit, there is no availability of material, or there is some hurdles in doing the work, ठीक है, some there is unconsequences in doing the work. तो अगर ऐसे टाइम पे डिफिकल्टी इन डूइंग द वर्क रहेगा तो दैट आउटटर्न विल बी लेस, आउटटर्न ऑफ दैट लेबर विल बी लेस. In bigger cities where specialized and experienced laborers is available, the outturn is greater, and then in small towns, ये तो एक लॉजिकल वे है कि अगर बिगर सिटीज़ में नॉर्मली आप देखेंगे मुंबई में, पुणे में या फिर नागपुर में भी देर इज़ एक्सपीरियंस स्टाफ इज़ देयर, एक्सपीरियंस स्टाफ इन द सेंस एक्सपीरियंस मेसन आर देयर, दैट मीन्स दैट आउटटर्न्स ऑफ दैट मेसन विल बी मोर. काम करते करते कैसा है कि एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब वो दैट इन ए स्पीड वे दे आर डूइंग द वर्क इन अ वेरी स्पीडी वे, ठीक है. तो इन बिगर सिटीज़ वेयर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लेबर्स इज अवेलेबल, द आउटटर्न इज ग्रेटर देन इन स्मॉल टाउन्स एंड कंट्री साइड्स. In well organized work, less laborers is required. So if the organizations or the planning or the construction planning is proper, it has been way in proper management अगर रहेगा, proper planning is there, तो less laborers will be required. If the planning is not proper, more laborers will be required. ये तो एक technical way है, ठीक है. So in this way, these amounts of we have seen the basics regarding the laborers, ठीक है. तो ये सब समझ में आ गया सबको? Yes. Yes sir. ओके. तो वी विल हैव द आउटटर्न्स ऑफ डिफरेंट लेबर्स, जैसे मैंने अभी बताया ना आउटटर्न्स, तो आउटटर्न्स ऑफ डिफरेंट लेबर्स, इसके लिए एक सेपरेट स्लाइड है मेरे पास. ओके, इसके लिए सेपरेट स्लाइड है, तो विल सी दैट आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स. यस. So these are the outturns of different labors, ठीक है. The outturns in the sense what is the amount of quantity of labors required. Outturns is nothing but the quantity of labors required. This is nothing but the outturns of different labors, ठीक है. तो आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स क्या रहेगा कि आउटटर्न्स, जैसा अगर मेरे को सीमेंट कॉन्क्रीट करना है, सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशंस, तो इफ़ वी आर हैविंग 10 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन करना है, फाउंडेशंस में सीमेंट कॉन्क्रीट करना है, दैट इज इन पीसीसी, सीमेंट कॉन्क्रीट इन द सेंस पीसीसी. अब पीसीसी इन फाउंडेशन करना है जिसकी क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर्स है, तो कितने मेरे को लेबर्स लगेगा, कितना मतलब हेड मेसन इन द फॉर्म ऑफ लेबर्स, आउटटर्न्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेबर्स. तो हेड मेसन कितना लगेगा, तो 1/4. एक्चुअली इट इज़ इन फ्रैक्शंस, बट वी हैव कन्वर्टेड, ये फ्रैक्शंस जो निकला है, क्यों निकला है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट फॉर 10 क्यूबिक मीटर्स. ये जो सारे कैलकुलेशंस है एक मतलब एक प्रिसाइज वे में इसको किया है, इसके लिए ये फ्रैक्शंस में आया है, ठीक है. तो अगर समझो इसका अमाउंट अगर बढ़ता था 10 क्यूबिक मीटर का, अगर 20 क्यूबिक मीटर्स या फिर 15 और 30 क्यूबिक मीटर्स होता था, तो ये फ्रैक्शंस में नहीं होता था, ठीक है. तो अपन ने एक ईजीएस्ट वे में करने के लिए इसको क्या किया, इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड किए, क्योंकि अपने पास अमाउंट कैसा है कि 10 क्यूबिक मीटर्स के लिए निकालना है, ठीक है. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेड मेसन्स रिक्वायर्ड फॉर 10 cubic meters? तो इट इज 1/4. हाउ मच इज द मेसन रिक्वायर्ड फॉर 10 cubic meters? कितना मेसन लगेगा वो 10 cubic meter ऑफ पीसीसी करने के लिए? तो 2.5, 2.5, ठीक है, ये 2.5 है. मजदूर कितने लगेंगे? तो 20 मजदूर विल बी रिक्वायर्ड. बिस्ती इज द नथिंग बट द इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी देन मजदूर. मजदूर से भी नीचे का जो कैटेगरी रहता है दैट इज बिस्ती. बिस्ती इन सिंपल सेंस में कैसा बोलेंगे आप, हेल्पर रहेगा या फिर वाटरमैन रहता है. वाटरमैन जो रहता है ना, पानी मारने के लिए जो लगा रहता है वाटरमैन, तो दिस बिस्ती इज द लोअर कैटेगरी देन मजदूर. तो वो कितने बिस्ती लगेंगे हेल्पर टाइप में जो रहेगा, वो कितने लगेंगे, दैट इज नथिंग बट 2 numbers. तो दैट मीन्स 10 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पीसीसी करना है अगर फाउंडेशन में, अगर वो ले करना है मेरे को 10 क्यूबिक मीटर्स में, तो हेड मेसन कितना लगेगा, 1/4 लगेगा. मेसन कितना लगेगा, 2.5, दैट इज 2.5 लगेगा. मजदूर कितना लगेगा, 20 लगेगा. बिस्ती दैट इज नथिंग बट वाटरमैन और द हेल्पर, इट इज़ लोअर देन मजदूर, वो कितना लगेगा, दैट इज 2 numbers. अगर सेम वे सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर आरसीसी वर्क, ये जो है पीसीसी है विदाउट आरसीसी है, ठीक है, स्टील नहीं है यहाँ पे इट इज़ आरसीसी वर्क.
तो सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर आरसीसी वर्क में 10 क्यूबिक मीटर करना है, तो हेड मेसन कितना लगेगा? अब ये देखो थोड़ा बढ़ गया, 1/4 से कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। अब मेसन कितना लगेगा? ये 2.5 था, ये कितना लग गया देखो, क्योंकि ये आरसीसी वर्क है इसलिए मेसन कितना लग गया? 3 नंबर्स लग गया, ठीक है। वैसे मजदूर थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे 20 था तो इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 18। बिस्ती यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे ईयर इंस्टेड ऑफ बिस्ती मजदूर रिड्यूस होके बिस्ती में इंक्रीज हो गया, दैट 2 अमाउंट इट हैज़ बीन इंक्रीज हियर, बिस्ती एज 4, ठीक है। तो सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर आरसीसी वी आर हैविंग वी रिक्वायर फॉर 10 क्यूबिक मीटर्स, हेड मेसन 1/2, मेसन 3, मजदूर 18, बिस्ती एंड 4। Next is reinforced work for RCC. Again reinforcement, only reinforcement. Reinforcement मतलब अगर उसको reinforcement करना है, जैसे बार बाइंडर रहता है तो बार बाइंडर reinforcing जो स्टील का सिर्फ काम करेगा आरसीसी के लिए, सिर्फ स्टील का काम करने के लिए 10 कुंटल का अगर स्टील का काम करना है उसको, स्टील ओनली स्टील, ठीक है। यहाँ पे स्टील एक्सक्लूडिंग था, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, ठीक है। स्टील करना है तो मेसन कॉम ब्लैक स्मिथ जो रहता है, बार बाइंडर जो रहता है वो कितना लगेगा? 1, और मजदूर उसके हाथ के नीचे कितना लगेगा? 1, ठीक है। तो 10 क्विंटल्स के लिए वी विल रिक्वायर मेसन कॉम ब्लैक स्मिथ इट इज़ 1 एंड मजदूर एज 1। अगेन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, अगर ब्रिक वर्क करना है फाउंडेशन और प्लिंथ में, मतलब लोअर लेवल में करना है, फाउंडेशन प्लिंथ मतलब लोअर लेवल में, तो 10 क्यूबिक मीटर्स का अगर उसका आउटटर्म्स है तो हेड मेसन कितना लगेगा? 1/2, मेसन कितना लगेगा? 10, मजदूर कितना लगेगा? 14, और बिस्ती कितना लगेगा? 2, ठीक है। अगेन फॉर 5th नंबर, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब ये कैसा था? ये सब स्ट्रक्चर का था, अब यहाँ पे क्लास भी है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और ये फर्स्ट क्लास बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो लेबर रहेगा फर्स्ट क्लास के लिए, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर्स के लिए हेड मेसन इट इज़ 1/2, मेसन इट वी रिक्वायर एज 8, मजदूर वी रिक्वायर एज 15 एंड बिस्ती एज 2। अगेन फॉर कोर्स रबल मेसनरी इन लाइम और सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। अगर कोर्स रबल मिशनरी होता है लाइम में, नॉर्मली इन ओल्डन डेज वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ सीमेंट वी आर यूजिंग लाइम, तो अगर ऐसा होता है कोर्स रबल मिशनरी इन, नॉर्मली इट हैज़ बीन यूज्ड इन दैट इज़ नथिंग बट द कंपाउंड वॉल्स के लिए, दिस कोर्स रबल मिशनरी इट हैज़ बीन यूज, और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में आपने स्टडी किए थे यूसीआर दैट इज़ अनकोर्स रबल मिशनरी। तो अगर वो वर्क होता है 10 क्यूबिक मीटर्स में, सीमेंट में करो या फिर लाइम में करो 10 क्यूबिक मीटर्स, तो हेड मेसन रिक्वायर्ड इज 1/2, मेसन रिक्वायर्ड इज 15, मजदूर रिक्वायर्ड इज 22 एंड हाफ, 22 एंड हाफ, ठीक है, 22 एंड हाफ। बिस्ती रिक्वायर्ड इज 1 एंड हाफ दैट इज 1.5, ईयर मजदूर इज 22.5। यस। Again, stone masonry in foundation and plinth. 7th serial number is nothing but stone masonry in foundation and plinth. Here there is coarse rubble masonry in lime और cement concrete. अब स्टोन मेसनरी अगर करना है फाउंडेशन प्लिंथ के लिए तो 10 क्यूबिक मीटर्स अगर उसका आउटटर्न्स है तो हेड मेसन रिक्वायर्ड इज 1/2, मेसन रिक्वायर्ड इज 10, मजदूर इज 17 एंड हाफ, बिस्तर रिक्वायर्ड इज 1 एंड हाफ, ठीक है। अगेन 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर अगर करना है, ठीक है, तो फॉर 100 स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस सीमेंट प्लास्टरिंग अगर यूनिट क्या रहता है इसका? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो हियर इंस्टेड ऑफ 10 स्क्वायर मीटर बहुत कम एरिया होता है, तो 100 स्क्वायर मीटर्स वी हैव टेकन एज 100 स्क्वायर मीटर्स, और ये स्क्वायर मीटर्स में रहता है, बाकी आइटम्स क्यूबिक मीटर्स में मेजर होते हैं, ये स्क्वायर मीटर्स में रहता है। तो 100 स्क्वायर मीटर्स का अगर सीमेंट प्लास्टर करना है तो हेड मेसन रिक्वायर्ड इज 1/2, मेसन रिक्वायर्ड इज 10, मजदूर रिक्वायर्ड इज 15 एंड बिस्तर रिक्वायर्ड इज 1। Again, next is 9th serial number is nothing but 20 mm thick DPC, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। 20 mm का अगर DPC है, डैम प्रूफ कोर्स है, अगेन डैम प्रूफ कोर्स का यूनिट क्या रहेगा? स्क्वायर मीटर्स। तो 100 स्क्वायर मीटर्स का अगर DPC करना है तो हेड मेसन रिक्वायर्ड इज 1/2, मेसन रिक्वायर्ड इज 5, मजदूर रिक्वायर्ड इज 5, बिस्ती अगेन रिक्वायर्ड इज 1, ठीक है, बिस्ती रिक्वायर्ड इज 1। लास्ट सीरियल नंबर और सेकंड लास्ट इज नथिंग बट द मोजाइक और टेराजो फ्लोरिंग। मोजाइक टाइल फ्लोरिंग क्या रहेगा? व्हाट इज मोजाइक एंड टेराजो फ्लोरिंग? एनी आइडिया अबाउट दिस? व्हाट इज मोजाइक एंड टेराजो फ्लोरिंग? यस, एनी आइडिया रिगार्डिंग मोजाइक और टेराजो फ्लोरिंग? सर वो सीमेंट और मार्बल के वो बनाते हैं उसको मिक्स करके। हाँ,
है ना। सीमेंट रहता है, वाइट सीमेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं, और चिप्स यूज़ करते हैं, मार्बल्स के चिप्स रहते हैं, मार्बल्स के जो टुकड़े वेस्टेज रहता है वो वेस्टेज यूज़ करके आप क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर वे में आप नीचे रखते हैं, लेयर प्रॉपर मतलब अच्छे डिज़ाइन में रखते हैं, और उसके एम्प्टी स्पेस जो रहेगा, बीच का जो स्पेस रहेगा वो वाइट सीमेंट से आप फिल करते हैं। कलर सीमेंट भी यूज़ करते हैं, कभी कभार रेड कलर का भी यूज़ करते हैं कलर के लिए, और वाइट सीमेंट यूज़ करें तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ऐसे जो फ्लोरिंग रहता है मोज़ाइक और टेरेजो फ्लोरिंग, अगर वो 100 स्क्वायर मीटर्स का अगर अपने को ले करना है तो कितने हेड मेसन लगेंगे, तो हेड मेसन 1 लगेगा, मेसन 20 लगेंगे, मजदूर भी 20 लगेंगे, बिस्ती भी 2 लगेगा। अब उसके बाद में पॉलिशिंग होता है, क्योंकि कैसा रहता है वो रफ सरफेस रहता है, तो थोड़ा सा शाइनी होने के लिए, क्योंकि मार्बल है तो शाइनिंग के लिए पॉलिशर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, तो अगेन पॉलिशर्स रिक्वायर्ड इज़ 20। तो दीज आर द आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स। तो 100 स्क्वायर मीटर्स का आउटटर्न करने के लिए हेड मेसन 1 रिक्वायर्ड रहता है, मेसन 20 है, मजदूर 20 है। अगेन बिस्ती रिक्वायर्ड इज़ 2, बिकॉज मेसन भी देखो ज़्यादा नंबर्स है, अभी जितने मेसन्स आपने पढ़े होंगे यहाँ से ऊपर तक, उसमें 15 था, 16 था, 12 था, बट यहाँ पे मेसन रिक्वायर्ड इज़ 20, बिकॉज थोड़ा सा स्किल्ड वे में आपको करना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखना है, आर्किटेक्चरल व्यू में भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए मेसन रिक्वायर्ड इज़ लिटिल बिट मोर क्वांटिटी, ठीक है। तो मेसन 20 रिक्वायर्ड है, उसके नीचे हाथ के नीचे लेबल्स रिक्वायर्ड इज़ 20, बिस्ती इज़ वाटरमैन रिक्वायर्ड इज़ 2, अगेन उसका पॉलिशिंग वर्क रहेगा उसका, तो मजदूर पॉलिशर रिक्वायर्ड इज़ अगेन 20। Again, this serial numbers is nothing but the cement painting with yes, ये थोड़ा सा वो हो गया शायद, सीमेंट पेंटिंग विथ वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 2 कोट्स विथ प्राइमर ऑफ 2 कोट्स, अगर ये करना है तो ये जो रहेगा आपका हेड मेसन रिक्वायर्ड इज़ 1/2, मेसन रिक्वायर्ड इज़ 10, मजदूर रिक्वायर्ड इज़ अगेन 10, again painter required for this case is nothing but 1.5, and मजदूर required is, सब ये शायद से क्लब हो गया है, यस ओके। सीमेंट पेंटिंग अगर 100 स्क्वायर मीटर्स का अगर सीमेंट पेंटिंग करना है तो 100 स्क्वायर का सीमेंट पेंटिंग, ओनली सीमेंट पेंटिंग करना है, तो मेसन रिक्वायर्ड इज 10, मजदूर रिक्वायर्ड इज 10, एंड बिस्तर रिक्वायर्ड इज 1। ये 3 लेबर्स, कैटेगरीज ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड हो गए सीमेंट पेंटिंग के लिए। अगर वाइट वॉशिंग करना है, कलर वॉशिंग करना है, 2 कोट्स विद प्राइमर ऑफ 2 कोट्स, अगर ये करना वाइट वॉशिंग करना है, उसका एरिया भी 100 स्क्वायर मीटर्स है, तो ओनली पेंटर रिक्वायर्ड इज़ 1.5 एंड मजदूर रिक्वायर्ड इज़ 2, ठीक है। तो सीमेंट पेंटिंग अलग रहता है और वाइट वॉशिंग अलग रहता है, ठीक है। सीमेंट पेंटिंग में सीमेंट का मतलब एक लेयर अप्लाई करना पड़ता है अपने को, तो इसलिए मेसन रिक्वायर्ड इज 10, मजदूर रिक्वायर्ड इज 10 एंड बिस्ती इज 1। वेराज वाइट वॉशिंग है तो सिंपल कलर रहता है, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 2 कोट्स करना है प्राइमर के साथ में, तो 100 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है, तो पेंटर रिक्वायर्ड इज 1.5 एंड मजदूर रिक्वायर्ड इज 2, ठीक है। तो ये सब आउटटर्न्स ऑफ लेबर्स ये समझ में आया सबको, ठीक है, यस। सर ये हाँ हेड मेसन और मेसन ये कैलकुलेट कैसे किए? हाँ, मैं वही बता रहा था, ये एज़ पर मतलब ये कैसा है कि ये गाइडलाइंस है एज़ पर IS 1200, या फिर एज़ पर IS कोड। ये थोड़ा सा कैसा है कि एक्सपर्ट जो थे जिसने एस्टिमेटिंग निकाला है, तो ये एक्सपर्ट्स ने क्या किया है कि स्किल्स मतलब ये किए कि भाई एक अमाउंट करना है, जैसे 10 क्यूबिक मीटर्स है, तो 10 क्यूबिक मीटर्स में कितना लेबर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना हेडमेसन्स रिक्वायर्ड होगा, तो वो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ने, एक्सपीरियंस स्टाफ ने, स्ट्रॉन्ग जिनके पास मतलब फील्ड का नॉलेज था, ऐसे लोगों ने बैठकर ये मतलब क्लब किया कि आपके मतलब 10 क्यूबिक मीटर्स का अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हेड मेसन कितना रिक्वायर होगा 10 क्यूबिक मीटर्स के लिए, ठीक है। तो 1/4 रहेगा, या फिर मेसन कितना रहेगा 2.5 रहेगा, मजदूर कितना रहेगा 20। अब इसकी मतलब वो लोगों ने साइड के कंडीशंस को देख के, साइड में कितना लगता है, कितना आउटटर्न्स होता है, सारे मेजरमेंट्स होने के बाद अपने लिए एक पैरामीटर डिसाइड किए। दिस इज़ नथिंग बट एक एज गुड एज डाटा है, पैरामीटर्स है जो अपने सामने आया है इन मतलब फर्निश फॉर्म में है, इन इजीएस्ट वे है, ठीक है। इजीएस्ट वे में आपके सामने दिया है कि भाई अगर 10 क्यूबिक मीटर्स अगर आपको कोई काम करना है, कोई मतलब आइटम ऑफ वर्क एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हेड मेसन कितना लगेगा, मेसन कितना लगेगा, मजदूर कितना लगेगा, बिस्ती अपने को निकालना नहीं है। मतलब ऑलरेडी इंजीनियर्स ने ये सारा काम कर दिया है और अपने सामने एक गाइडलाइन दी है कि इतना अमाउंट ऑफ मेसन्स लगेगा, इतना मजदूर लगेगा, इतना बिस्ती लगेगा ये काम करने के लिए, ठीक है, ओके।
यस सर। हाँ, ये चीज़ मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब ये मतलब एक्चुअली वो लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया कि साइट कंडीशंस कौन सी थी, कौन से साइट से विज़िट किया वो लोगों ने, तो वो सारा मतलब ये बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने को कैसा है कि एक मतलब रेडीमेड वे में अपने को ये सामने आया है कि एक 10 क्यूबिक मीटर का अगर काम करना है तो क्या लेबर लगेगा, मेसन लगेगा, मजदूर लगेगा, बिस्ती लगेगा, मतलब अपने को रेडीमेड मिला है। ठीक है, अपने को ये निकालना नहीं है। अगर ये निकालना होता तो फिर अपने को कोई एक साइड जाना पड़ता, वो सारा मिक्सिंग देखना पड़ता, उनको मिक्सिंग में कितना लेबर्स लगता है, मतलब घड़ी लेके बैठना पड़ता है कि 8 आवर्स में आप कितना काम करते हैं, तो आपको फिर मेजरमेंट से टेप से मेजर करना पड़ता कि भाई एक मेसन 8 घंटे में इतना काम किया, टेप से मेजर करो उसका थिकनेस कितना था, उसका प्लास्टरिंग कितना हुआ या फिर फ्लोरिंग कितना हुआ। तो वो सारा काम इंजीनियर्स के जो जिसने मतलब बनाया था, जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो टाइम पे जो इंजीनियर्स थे तो उन्होंने वो सारे काम कर दिए हैं और अपने सामने एक रेडीमेड वे एक गाइडलाइन दिया है कि दिस अमाउंट ऑफ लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड इन एग्जीक्यूटिंग सम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो वो चीज़ अपने पास मतलब एक रेडीमेड वे है, अपने को इसमें ये चीज़ करना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना। अगर ये चीज़ एक्चुअल में अगर करना होता तो आप इसको को रिलेट कर सकते हैं, ये मतलब ये एक गिवन है, बट आप उसको को रिलेट साइट से जाके कर सकते हैं। ठीक है, आपको को रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, मगर एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू आप को रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक साइट पे चले गए आप कि भाई मेसन क्या काम कर रहा था, उसके हाथ के नीचे कितने आदमी थे और एक दिन में उसने क्या काम किया, कितना काम किया, वो आप मेजर कर लो। ठीक है, तो ये आप एक मतलब एक क्रॉस चेक के लिए वी कैन डू दिस टास्क ऑल्सो, एक टास्क है तो वो टास्क आप साइट पे जाके कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। ठीक है, जिसमें वी हैव स्टडीड द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड विद दिस, तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर। अब डिपेंडिंग अपॉन ये जो है ये थोड़ा सा आप याद कर लो कि सीमेंट कंक्रीट में कितने हेड मेसन लग रहा है या फिर लेबर्स कितना, ये सारी चीज़ें, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस हेड्स, ये हेड से रिलेटेड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अभी तक किसको कोई कन्फ्यूज़न नो सर। है ना? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो वी विल स्टॉप दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट भी कल भी ऐसे ही रहेगा, मैं बता दूंगा आपको जैसा फ़ोन करके जैसा भी रहेगा, है ना, कि इन्फॉर्म कर देना अपने ग्रुप में कि कोई भी कौन से टाइम में अपना लेक्चर रहेगा। ठीक है, यस सर। है ना? तो अभी तक का आज का तो समझ में आ गया। ठीक है, यस सर। और किसी को मयूरी मयूरी की समझ में आया है? मयूरी है और भी लोग दिख रहे हैं मेरे को, यस सर। है ना, शाइनी को भी आया है, कुरैशी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। टुडे वी विल एंड दिस लेक्चर्स। तो इसका ये जो मेरे पास जो एक्सेल शीट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये एक्सेल शीट है, यही एक्सेल शीट पे आपका सारा काम आगे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसी के बेस पे आपके सारे क्वांटिटीज़ और डिफरेंट क्वांटिटीज़ आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो 11-12 आइटम्स ऑफ वर्क थे और ये लेबर्स जो क्वांटिटीज़ थे, इसी के बेस पे सारा मतलब आपका डिपेंड है पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क, पर यूनिट जो निकालेंगे आप आखिरी में, तो वो पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सेल शीट। मतलब ये जो एक्सेल शीट मैंने जो बताया आपको, इसी पे आपका सारा मतलब प्रोसीजर रहेगा, डिपेंड रहेगा कैलकुलेशंस का। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। सर हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, 2 मिनट। सर ऊपर कर दीजिए। ये फर्स्ट पेज ही था, अभी नीचे कर लेता मैं थोड़ा, आ गया। यस सर। और लास्ट थोड़ा और नीचे में ले लो। ठीक है, यस सर। पूरे सीरियल नंबर्स आगे के देख लो, 12 सीरियल नंबर्स है। यस सर, 2 मिनट। यस सर, आ गए। ओके।